تمہیں جینے کے لیے زندگی ملی ہے. تم جو جی رہے ہو وہ سمجھوتے ہیں، زندگی نہیں. انا سمجھوتے ہی جی سکتی ہے، زندگی تو تم جیتے ہو، کیونکہ انا بذات خود ایک سمجھوتا ہے. تم ایک ماحول میں، ایک سماج میں پیدا ہوتے ہو. وہ سماج، وہ ماحول تمہاری انا کو بناتا ہے. تم جب کوئی چیز بناتے ہو تو اس میں اپنی سہولت ڈھونڈتے ہو، اس چیز کی سہولت نہیں ڈھونڈتے. بالکل ویسے ہی سماج جو تمہاری انا بناتا ہے، جو تمہاری میں تخلیق کرتا ہے، وہ تمہیں سوچ کر نہیں بناتا بلکہ خود کو سامنے رکھ کر بناتا ہے. تم اگر اپنے لیے کوئی زندگی تخلیق کرتے تو وہ انا جیسی بیمار زندگی نہ ہوتی. سوسائٹی نے جو تمہاری انا بنائی ہے وہ بیماری ہے، لیکن وہ انا ایسے تم پر قبضہ کرتی ہے کہ تم یہ جان ہی نہیں پاتے کہ اس انا سے ماورا بھی تم ہو سکتے ہو. تم بیمار انا کو ہی صحت مند زندگی مان کر جینا شروع کر دیتے ہو. کبھی غور کیا ہے تم نے کہ تمہاری انا صرف بیماریوں کو ہی جاننے اور پہچاننے کے قابل ہے؟ تمہارا جسم صحت مند ہو تو اس کے ہونے کا احساس تک تمہیں نہیں ہوتا. پیر کا پتہ کب چلتا ہے؟ پیر کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ صحت مند نہ ہو. اس کی موجودگی کا تمہیں احساس ہی تب ہوتا ہے کہ جب اس میں کانٹا چبھا ہو. ہاتھ صحت مند ہو تو کب تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، زخمی ہو تو بار بار وہ اپنا احساس دلاتا رہتا ہے. پیٹ کا احساس صرف موٹے آدمی کو ہوتا ہے. تم کبھی اپنے جاننے کی نیچر پر غور تو کرو. تم جانتے ہی وہ ہو جو بیمار ہو، جو درست نہ ہو. ذرا سوال اٹھائیے اپنے آپ کے سامنے کہ آج کے اس جدید انسان کو سب سے زیادہ اپنے کس باڈی پارٹ کا احساس ہے؟ یقیناً سر کا. اتنا احساس کہ وہ اپنا ہونا ہی اپنے سر کو ماننے لگا ہے. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. I think therefore I am. تو یقین مانیے اگر آپ سارا دن سر کے احساس کے ساتھ، سوچتے دماغ کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو آپ کا سر بیمار ہے. اور سر بیمار ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہے؟ غور سے دیکھو اپنی ساری پریشانیوں کو. دھیان دیجیے اپنے دکھوں پر. یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے دکھ اسی سر کی فیکٹری میں ہی بن رہے ہیں. پریشانی کیا ہے؟ مستقبل میں کچھ ہونے یا نہ ہو سکنے پر فکر مندی. مستقبل میں آپ کا جسم جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن سر جا سکتا ہے. تو پریشانی کا ماخذ کیا ہوا؟ جی ہاں، یہی سر. غور سے دیکھیے اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو. دکھ کیا ہیں؟ غم کیا ہیں؟ ماضی میں کچھ ہوا جو آپ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی کا نام دکھ ہے. کیا آپ کا جسم ماضی میں جا سکتا ہے؟ جی نہیں. آپ کا سر لیکن ماضی میں جا سکتا ہے. اپنی کسی بھی پریشانی یا دکھ کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ ماضی اور مستقبل سے ہی جڑا ملے گا، کیونکہ مائنڈ کی ڈومین ہی وہی ہے. مائنڈ ماضی یا مستقبل میں ہی رہتا ہے. یہ اس پل سے ہمیشہ بے خبر ہوتا ہے. تمہارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم دماغ کو استعمال کر رہے ہو، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے. تم بس استعمال ہو رہے ہو اپنے دماغ کے ہاتھوں. اور اس دماغ کو اپنا کہنا بھی غلط ہے، یہ تمہارا ہے ہی نہیں. غور کرو، تمہارے دماغ میں کچھ بھی کیا تمہارا ہے؟ لوگوں کے نام ہیں، تمہارا نام ہے، چیزوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں. یہ سارے کہیں باہر سے تمہارے دماغ میں داخل کیے گئے ہیں. باہری چیزوں کی شکلیں ہیں، باہری خوشبوئیں یا بدبوئیں ہیں، باہری محسوسات ہیں. جو بھی حواس کے ذریعے تم پکڑتے ہو وہ سب باہر کا ہے. اور انہی باہری چیزوں کے بارے میں
तुम्हारा परसेप्शन है, तुम्हारा दिमाग। याद रखो, सर तुम्हारा नहीं है, ये मुआशरे का है। इसमें डूज एंड डोंट्स सारे बाहर से भरे हुए हैं। देखते हो तुम, एक माशरे में खैर कुछ होता है तो दूसरे मुआशरे में वही खैर शर हो जाता है। सर में जो भी कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, वो मुआशरे का है। और उसी सर ने बनाई है तुम्हारी अना, जिसे तुम मैं कहते हो। वो अना तुम्हारी कैसे हुई? वो तुमको चिमट गई है, और ऐसे चिमट गई है कि तुम क्या हो इसका फहम ही तुम्हें नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश बेल किसी दरख्त पर पड़ जाए तो सारे दरख्त पर कब्जा कर लेती है, उस दरख्त की सारी एनर्जी निचोड़ लेती है, उस दरख्त की सारी ग़िज़ा इस्तेमाल कर जाती है, और आखिर में उस दरख्त को खा जाती है जिस दरख्त पर वो खुद पल रही होती है। अना तुम्हारी वही आकाश बेल है जो तुम्हारी जिंदगी के दरख्त को चूस लेती है। जिस चीज के बारे में भी तुम जानने का दावा करते हो, उस पर गौर करना, वो बीमार होगी। सेहत कभी जानने में आती ही नहीं है। कभी तुमने नोट किया कि जब तुम बिल्कुल सेहतमंद होते हो, तुम्हें अपने जिस्म का कोई एहसास ही नहीं होता, बिल्कुल हल्के फुल्के होते हो। तुम्हें अपने जिस्म के बस उसी हिस्से का एहसास मुसलसल होता रहता है जो बीमार हो, जो जख्मी हो, जहां से टीसें उठ रही हो। किसी सच्चे सूफी से पूछो कि एनलाइटनमेंट क्या है, तो पता है उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब होगा कि जब तुम्हें मैं का, अपने होने का एहसास ही ना रहे। तुम्हें तुम्हारी मैं का एहसास है तो समझो तुम बीमार हो। तुम अगर बिल्कुल सेहतमंद हो तो तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास ही नहीं होगा। जिंदगी इतनी हल्की फुल्की होगी, बोझलपन से आजाद होगी कि कुल जिंदगी का समंदर तुम तैरते हुए पार कर लोगे। अना बीमारी है, इसीलिए तो सूफी मैं को मिटाने की बात करता है, क्योंकि जिसको तुम मैं कहते हो वो तुम हो ही नहीं, वो तुम्हारी सोसाइटी है। वो मैं तुम्हारी मिल्कियत है ही नहीं, वो सोसाइटी की मिल्कियत है। इसीलिए तो तुम सारा दिन कोशिश करते हो वो होने की जो माशरा चाहता है। तुम्हारी जिंदगी एक मुकम्मल समझौता है, एक रिहर्सल है। तुम्हारे अंदर आंसू हैं और बाहरी दुनिया में तुम होंठों पर हंसी लिए घूम रहे हो। अंदर तुम कुछ हो, बाहर कुछ और दिखाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हो। तुम दो दुनियाओं में बट गए हो। पता है, माहिरीन नफ्सियात इसी को शिज़ोफ्रीनिया का नाम देते हैं। ये दुनिया जो तुम्हें नॉर्मल नजर आ रही है, ये नॉर्मल नहीं है, ये शिज़ोफ्रेंजिक है। इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। शिज़ोफ्रीनिया का मतलब यही है कि इंसान दो हो गया, अंदर कुछ, बाहर कुछ। अंदर जो हो वो तुम हो, बाहर जो है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ईगो है, अना है। वो अना जो समाज ने बनाई है वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो सोसाइटी के तकाजे ही निभाएगी। तुम्हारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, तुम्हारे सेल्फ और तुम्हारी अना के दरमियान ऐसी खलीज बन गई है कि दरमियानी पुल भी नहीं बन सकता। दो के दरमियान पुल तो तब बनता है कि जब दो हों। तुम सेल्फ को तो जान ही नहीं पाते, फील ही नहीं कर पाते, बस अना ही अना रह जाते हो। तुम अपना असल चेहरा तो खो चुके हो, मखोटे को ही अपना चेहरा मान लिया है। पुल बने कैसे? पुल तो वही बना सकता है कि जो अंदर को भी जानता है और जो बाहर को भी जानता है, जो जानता है कि अंदर बैठा हुआ मैं रियल मैं है और बाहरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता मैं बाहरी दुनिया का ही तख्लीक करदा एक फिनोमिना है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तुम नेचुरल नहीं रहे, और जो ही तुम नेचुरल नहीं रहते वहीं तुम सुख से महरूम हो जाते हो। सुख क्या है?
सुख नेचुरल हो जाने में है। सुख जिंदगी के बहाव के साथ बहने का नाम है। ये दरख्त सुखी हैं, क्यों? क्योंकि सफेदे का दरख्त नीम का दरख्त होने की कोशिश नहीं कर रहा। ये फूल खुश हैं, क्यों? क्योंकि गुलाब का फूल सूरजमुखी होने की तगोदौ में नहीं लगा। ये पहाड़ जॉयफुल हैं, क्यों? क्योंकि इनके दिल में घाटी बनने की ख्वाहिश नहीं पल रही। इंसान ही बस सुखी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कुछ और होने की कोशिश कर रहा है, हमेशा समझौते कर रहा है। इंसान को छोड़कर कायनात की कोई भी चीज कुछ और होने की कोशिश नहीं कर रही। आदमी की दास्तान ही मगर और है। मुकम्मल सेहतमंद आदमी को तो ढूंढना ही मुश्किल है। सेहतमंद आदमी पता है कौन होता है? वो जो अपने में मौजूद है, वो जो मखौटे को मैं बनाकर नहीं जी रहा, जिसकी अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया के रोल प्ले से, एक्टिंग से मुतासिर नहीं होती। सेहतमंद आदमी का मतलब ये नहीं है कि तुम बागी हो जाओ, इनकलाबी बन जाओ। देखते हो ये जो इनकलाबी बने फिरते हैं, ये जो बागी कहलाते हैं खुद को, वो बाहरी दुनिया की हर चीज को इनकार करना शुरू कर देते हैं, रद्द करना शुरू कर देते हैं। बाहरी रस्में तोड़ना, समाजी, मुआशी, सियासी निजामों के खिलाफ बगावतें करने का कतन ये मतलब नहीं है कि वो इंसान सेहतमंद है, नेचुरल जिंदगी जी रहा है। तुम बाहरी दुनिया को कबूल करो या बाहरी दुनिया को रद्द करो, दोनों ही सूरतों में बाहरी दुनिया ही अहम है। बाहर दोनों ही सूरतों में ताकतवर हो गया है। बाहर तुम्हारी अंदर की दुनिया को हर वक्त ही मुतासिर कर रहा है। सूफियों को कभी तुमने देखा कि मुआशी, सियासी, समाजी निजामों के खिलाफ बगावत का अलम लेकर निकले हों? नहीं, हकीकी सूफी का ये किरदार नहीं होता। हकीकी सूफी तो वो है कि जो अपने अंदर की दुनिया से जुड़ा है, जो बाहरी दुनिया के तगय्युर और तबद्दुल को देखता है, उनसे न जुड़ता है न नफरत करता है। क्योंकि तुम जुड़े या नफरत की या भागे, दोनों सूरतों में तुम बाहरी दुनिया के ही हो। तुम्हारे कन्फर्मिस्ट हो या नॉन कन्फर्मिस्ट, दोनों का मसला एक ही है। दोनों एक दूसरे के लाख अपोजिट नजर आ रहे हों, मगर अहम दोनों के लिए बाहर है। सूफी तो वो है कि बाहर की दुनिया जिसकी अंदर की दुनिया को छूना छोड़ दे। अब दो मौजूद हो गए हैं, अब दोनों के दरमियान कोई पुल बन सकता है। इनलाइटनमेंट यही हालत है कि तुमने जान लिया कि तुम एक्टर हो और एक्ट कर रहे हो, लेकिन शाम को खेल खत्म और किरदार भी खत्म। जो एक्टर जानता हो कि वो एक्ट कर रहा है, वो फिर अपने एक्ट के साथ एक नहीं हो जाता, और जो एक्टर जानता हो कि वो एक्टिंग कर रहा है, वही अच्छा एक्टर होता है। जो इंसान जानता हो कि ये मेरी अंदर की दुनिया है और ये मेरे बाहर की दुनिया है जिसके साथ मुझे चलना है, ये मेरा रोल है जो मैंने प्ले करना है। अब बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, वो उसकी अंदर की दुनिया को हिला नहीं सकता। बाहर के हादसे उसकी अंदर की दुनिया में कोई तूफान बर्पा नहीं करते। बातिन की झील स्टिल रहती है और बाहर की सतह पर लहरें उभरती रहती हैं, मगर अंदर कोई हलचल नहीं मचती। ये है सूफी की जिंदगी, ये है हकीकी जिंदगी। ये समझौता नहीं है, ये जिंदगी है, ये समझ पर कायम है। समझौते ना जियो, जिंदगी जियो।